and I wasn't sure what he's going to perform. I was enamored, I was stuck. It was such a beautiful and a powerful performance that I told him that whenever we do our next edition of the Delhi Literature Festival, we will reach out to him, irrespective of where he is. And an accomplished painting artist based in Delhi initiated Vaidyanathan, Srimati Kamalini Natarajan Dutt, and Srimati Rama Vaidyanathan. Has received fellowships from the Ministry of Culture and Sahitya Kala Parishad for dance. His solo productions like Shikhandi, Rashkhan, and Aneklabhya showcase his commitment and hard work, earning him acclaim on national and international stages. So can we have a round of applause for him? And I request someone we have grown seeing on television, national television, is with us right on the stage, Dr. Rama Pandey. Rama ji has been a TV presenter, she has been a theatre personality, she is a multifaceted, talented personality. And I personally feel that she adds so much value to the Delhi Literature Festival every year. She asks me, what is my role? What I feel is that her presence itself, her overarching presence itself, means the community is here. What we call, when I see her, I see the entire kainat, if I may use that word. The entire culture gets reflected in her personality as we always see her. An artist is an artist. Rama ji, dil se bol raha hu. Rama ji is a versatile artist involved in theatre, film and television, best known for a show, Jaane Apna Desh on Doordarshan, Rajasthan. Founder of Rama Theatre, Natya Vidya and montage films, she is committed to preserving fading oral and folk traditions. Born and raised in Jaipur, she started as a child artist and later excelled in lead roles in various plays. And that reminds me, she also belongs to a very illustrious family. Ila Arunji, I mean, you would have known, most of you know, she is also a performing artist. She is a sister, if I am correct. And Mr. Piyush Pandey with Ogilvy. Piyush ji is also a name in the world of advertisement. And Piyush Pandey ji is a brother, right? और एक और कोई नाम छूट गया हो परिवार में तो हाँ, प्रसून पांडे is also part. So जितने भी यहाँ पांडे हैं, and Sharma, thank you so much. With vast experience in theatre, TV and films, Rama ji has collaborated globally, contributing to BBC Hindi, Voice of America, CBC Canada, and Radio Netherlands, TV Centre Holland. Her literary contributions include authored books like Begum Bano or Khatun, which has earned her numerous national and international awards. Rama ji is a celebrated author with more than 30 plays, 2 poetry collections, and 2 novels to her credit. Lalan Miss, a play based on the complexities of transgender life, has received acclaim nationwide. So this is going to be, I feel, a very personally, a very lethal combination with Rama ji, who has already penned some of the books on the subject, and a super talented artist in Dr. Himanshu Srivastava performing it right in front of all of us. Can we have a round of applause for both of them? And I'll request Rama ji to take over from here. Thank you so much. Thank you, Ajay. पहली बार 12 साल में अजय ने माइक में खुल के मेरे बारे में इतने प्यार से बोला है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन मैन टीम. ये सारा उत्सव इसके मन से उपजा हुआ एक सपना है जिसमें हम सब लोग यूँ मिलते गए और कारवां बनता गया. उसमें हम सब जुड़ गए. उसमें अपना शाजिया इल्मी भी शामिल है. तो अब जो बात अपन करने जा रहे हैं इसमें बहुत सारे मेरे अपने आर्टिस्ट थे. किसी ने, वो मुझे जानती नहीं बच्ची, वो मेरे पास आके बोली, आई डू नॉट नो बट यू मस्ट बी ए वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन जो आ रहा आपके पैर छू रहा है. मैं उसको बताना चाहती हूँ कि इस लल्लन मिस की कास्ट के बहुत सारे मेरे अपने शिष्य इसमें यहाँ बैठे जिनको मैंने ख़ास तौर पे इसलिए बुलाया
कि आज जो आप देखने जा रहे हैं वो बड़े बड़े इसमें लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं हुआ, जहाँ सब्जेक्ट और परफॉर्मर एक साथ आ रहे हैं। मेरे साथ जो यंग जनरेशन का जो आर्टिस्ट सामने आ रहा है वो मेरे अपनी दोस्तों का सिखाया हुआ है। लेट सरोजा वैद्यनाथन, कमलनी जी हु वर्क विद मी इन टेलीविजन, रमा वैद्यनाथन, उनका सिखा हुआ। उसका जो महाभारत काल का शिखंडी है वो मेरी लल्लन मिस के साथ कैसे आया, ये कहानी छोटी सी सुना के ये लल्लन मिस में आपको दिखाती हूँ। ये किताब पुरस्कार में गई, वाणी पर प्रकाशन किया और इसके प्लेस को हर जगह स्टैंडिंग ओवेशन मिला और अभी अवार्ड्स में है। क्या है ये किताब, कौन है लल्लन मिस? ये कहानी चौराहों पे खड़े उन हिजड़ों की कहानी है जो बजा बजा के तालियां, एक बार बजा के देखो उनके जैसे तालियां जिन पे हंसते हो, उनकी कहानी है। और वो गाती जाएगी, तेरे गोरे गोरे गालों पे दुल्हन वाले बाल, तेरे गोरे गोरे गालों पे घूंघर वाले बाल। आप लोग हंसते हैं लेकिन एक दर्द का रिश्ता शिखंडी से लेकर लल्लन तक बंधा है, लिंग का रिश्ता। लेट्स टॉक बोल्डली अबाउट इट। वो जो पुरुषों का अंग है वो कितना महत्वपूर्ण है इस तमाम भारत की सोसाइटी में। लल्लन मिस जैसी जाने कितने हिजड़े, कम से कम नहीं होंगे तो 5 लाख हैं जो हिंदुस्तान में यहाँ बने। लक्ष्मी की कहानी अकेली कहानी नहीं है, ये कहानी लिखी गई उस दिन जब मेरी गाड़ी खराब हो गई भिका जी का माँ प्लेस में, और एक हिजड़ा मेरी तरफ चलती हुई आई, सोनम है उसका नाम, जिंदा कैरेक्टर है। और उसने मुझसे आके कहा, हाय दीदी, अपनी जिंदगी में ऐसी बिंदी कहीं नहीं देखी। और जैसे उसने कहा, एक बार भी मुझे नहीं लगा कि मुझे हिजड़े ने कॉम्प्लीमेंट दिखा, मेरे दिल से आवाज आई, ये कोई मेरी सहेली है। क्योंकि अगला शब्द जो उसने कहा, मैंने कहा तुम इतना सुंदर कैसे बोलती हो? तो कहा कोकिला, वो मेरी नानी का नाम है। कहा कोकिला, हम सब तो बोलते सुंदर ही हैं, आप लोगों के कानों को हमारा सुर नहीं सुनाई पड़ता। ये उसके बाद मेरी तालियां बजाओ जब भी जिस बात को, क्योंकि आज मैं हमेशा सोशल वर्क करती हूँ अपने हर चीज़ में। मैंने अपने आप को सोसाइटी से जोड़ा है। ये प्लेटफॉर्म मैंने इसीलिए लिया कि मैं आप सब बच्चों से बात करूं ताकि अगली बार आप किसी हिजड़े को देखें तो आप हंसे नहीं और आप समझें कि हमारी सोच में खुद में कितना बड़ा कैंसर लगा हुआ है। शिखंडी का जमाना हजारों साल पुराने, एक लिंग की दवा, एक लड़की को लड़का बना के पाला गया, और बाकी की कहानी गूगल में पढ़ लेना, मैं वो खुद बताएगा। आई विल नॉट टेक अवे हिज परफॉर्मेंस, बट आई वांट टू से कि उस जमाने से लिंग की कहानी आज तक नहीं बदली। हम खड़े हैं 2024 में और आज तक कहानी वही की वही खड़ी है। जब आप अपमान करते हैं, आप अंधे को अपना लेते हैं, गूंगे को अपना लेते हैं, स्वास्तिक को बुला देते हैं, ऑटिस्टिक को बुलाते हैं, फिर क्यों इनको नगर पालिका की कूड़ों में फेंक आते हो? फिर क्यों इनको अनाथालय में छोड़ आते हो? इनका क्या कसूर है? एक लिंग नहीं हो रहा तो बनाता ऊपर वाला है, जिसको राम कह लो, रहमान कह लो, उसका क्या कसूर है? हम उसको क्यों पनिश करते हैं? ये कहानी जो है, मैं चाहूंगी कि आप लोग ले इस नाटक को। ये पहला नाटक है हिंदुस्तान का मिस लल्लन, जिसने खुल के बात की, हमने बोल्डली दिखाया इनकी जिंदगी क्या होती है। ये जो भिका जी कामा प्लेस पे खड़े होकर आपसे भीख मांगते हैं, उन्हें इतना अच्छा दर्जा मिला हुआ था अंग्रेजों के आने से पहले, शिखंडी के ज़माने से ये भीख नहीं मांगते थे, ये ख्वाजा सरा थे। ये हमारे मैं राजस्थान से हूँ, हमारे राजमहलों में पहरेदार थे, इन्हें रानियों के साथ लगाया जाता था। कभी भी भीख उन्होंने नहीं मांगी। अंग्रेज जब से आए उनको ये समाज खुद किया, उनका समलैंगिक सिस्टम अलाउड है, इंटर मैरिजेस अलाउड है लड़के लड़कों की, लेकिन उनके यहाँ किन्नरों के लिए उन्हें लगा कि हिंदुस्तान में उन्हें बंद कर देना चाहिए। 200 सालों में किन्नर समाज, किन्नर किसको कहते हैं? जो नर न हो, किन्नर। वो मैं दुर्गा की भक्त हूँ। दुर्गा स्थिति में जितनी बार देवी
अपना युद्ध जीतती हैं और नृत्य करती हैं, अपने साथ किन्नरों को खड़ा करती हैं। वो उनकी प्रतिष्ठा है। हम कौन होते हैं? हु आर वी? हम अपने आप को समझते क्या है कि हम किसी को दलित, किसी को किन्नर, किसी को कुछ कह के समाज से